Good morning, class. Now your first term examinations are finished. Before examinations, we had completed till chapter 2nd, right? Before exams, we had finished till chapter 2nd, and the chapter 2nd was Kingdom Classification of Plants. Now, today we are going to start chapter 3rd, that is Kingdom Classification of Animals. Okay, means in this chapter, we will study how animals are classified. How kingdom Animalia or animals are classified. So students, first of all we will see what are animals, because in this chapter we are going to classify, we are going to divide animals. So firstly we will see what are animals. So students, what are animals? They are the eukaryotic, right? Animals are the eukaryotic organisms, right? They are the eukaryotic organisms and they are multicellular. They are the multicellular organisms and they can locomote. They can locomote. What is the meaning of students word locomote? Means they can move from one place to another place. Okay. So it means they can perform locomotion. They can locomote means they can move from one place to another place. ये एक place से दूसरी place तक move कर सकते हैं. Okay, and the next students, very important feature of animals, that animals are heterotrophic. Okay, all the animals are heterotrophic. Now what is the meaning of heterotrophic? Students, means heterotrophic means they cannot prepare their food by their own. For their food they depend on other organisms, right? Means ये अपना food खुद नहीं बना सकते हैं. अपने food के लिए ये क्या होते हैं, दूसरे organisms पे depend रहते हैं. Okay, so that's why they are called heterotrophic. Now in heterotrophic, students, there is one more word, that in heterotrophic किस तरह का nutrition पाया जाता है इनमें, which type of nutrition found in animals? So holozoic. Okay, holozoic nutrition is present in animals. Holozoic nutrition. Now what is the meaning of holozoic nutrition? Means students, what is the meaning of word holozoic? Students, holozoic mode of nutrition is a mode of nutrition in which we first keep the food, we take our whole food and we keep inside the mouth. Okay, हम पूरा का पूरा food लेके अपने mouth में पहले रखते हैं. And this process, you know, you have studied in classes also, that food to keep the bite of the food or to keep the food in our mouth, this process is called ingestion. ओके, इस प्रोसेस को फूड को मुंह में रखना, माउथ में रखना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन. ओके, सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, हम पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं. मींस पूरा का पूरा फूड लेके हम पहले अपने माउथ में डालते हैं एंड देन बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, द होल फूड इज प्रोसेस्ड. मतलब बॉडी के अंदर फूड जो है, जो हम फूड इंजेशन में अपने माउथ में रखते हैं, दैट फूड इज देन डाइजेस्टेड, देन एब्जॉर्ब्ड. ओके, इनसाइड द बॉडी. मींस सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स सम स्टेप्स, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, ओके, एब्जॉर्प्शन. So students, these all are the parts of the holozoic nutrition. Holozoic means firstly we will keep all the food in our mouth, that is called ingestion, and then inside the body the food will be digested and absorbed. Students, now we had studied about animals. अब हम पढ़ेंगे कि classification क्या है. What is classification? Okay, so students, you know that classification means to divide organisms in different groups on the basis of their similarity and dissimilarity for the ease of study. Okay, मतलब क्या करते हैं हम, एनिमल क्लासिफिकेशन मीन्स इसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स में. किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है. जिन ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी होगी उनको एक ग्रुप में रखेंगे. उसके बाद जिनमें जो सिमिलर नहीं होंगे फिर उनको अलग करेंगे. उनमें जो सिमिलर होंगे फिर उनका एक ग्रुप बनाएंगे. और इस तरह से हम क्या करेंगे, एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे. ओके, और क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, क्यों हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? सो और क्लासिफिकेशन किया क्यों है साइंटिस्ट ने एनिमल्स का? फॉर देयर ईज ऑफ स्टडी. ओके, मीन्स
सो डैट हम उनकी ईजिली स्टडी कर पाएँ, हम उनको ईजिली पढ़ पाएँ, इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स हैं। ओके, सो अगर सबको हमें अलग अलग पढ़ना हो, सेपरेटली हमें हर एनिमल्स की स्टडी करनी हो, तो वी आर नॉट एबल टू डू डैट। ओके, हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया है, एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया है। बहुत सारे एनिमल्स जो कि सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया है, फिर दूसरे जो सिमिलर हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया है। इस तरह से हमने क्लासीफाई कर दिया है। अब अगर हम उस ग्रुप के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इट मीन्स हमने उस सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी कर ली, पढ़ लिया। ओके, सो इसीलिए हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को। अब स्टूडेंट्स जनरली फर्स्टली सबसे पहले क्लास एनिमल्स को किन 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। द फर्स्ट इज invertebrates. The group 1 is invertebrate and the group second is vertebrates. Okay, so students, animals को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट एंड द सेकेंड इज वर्टिब्रेट्स। ओके, सो अब ये क्या है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब इनके क्या कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स? इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, ओके, these are those animals in which vertebral column, or we can say their backbone. What is vertebral column? Vertebral column is the backbone. Okay, so their backbone in their body is absent. Okay, इनकी बॉडी में vertebral column या फिर backbone नहीं होती है, absent होती है. Okay, and vertebrates are those in their body vertebral column or backbone is present. ओके, सो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन एब्सेंट होती है, और वर्टिब्रेट एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले बैकबोन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन, हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। अब सेकेंड कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का? इनवर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन, ओके, एंडोस्केलेटन इज एब्सेंट। ओके, अब ये एंडोस्केलेटन क्या है स्टूडेंट्स? स्केलेटन और एंडोस्केलेटन मीन्स द समथिंग दैट इज हार्ड, ओके, हार्ड थिंग, hard frame like material, that is skeleton, and endo means which is found inside the body. Okay, so वो skeleton जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स, इन अदर एनिमल्स, ओके, हमारे डॉग में, काऊ में, ओके, कैट्स में, इन सब में क्या होता है, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन मीन्स द स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ बोन्स। ओके, आपने देखी भी होगी ऐसे एक स्केलेटन की पिक्चर बहुत बार आपने देखी होगी, दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ओके, उसको देख के कभी कभी हम लोग डर भी जाते हैं, तो दैट इज एंडोस्केलेटन। ओके, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज you have studied in chapter first, cartilage is a tissue. Okay, so bones and endoskeleton which is made up of bone and cartilage is absent in invertebrates. Okay, इनकी बॉडी में ऐसा बोन्स का बना हुआ कोई भी फ्रेम, कोई भी स्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन is found in them which is made up of calcium, generally which is made up of calcium and silica. Silica are, it is also an element material. Okay, so इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। Now what is exoskeleton students? Exoskeleton is the skeleton or the hard thing which is found at the external side of the body. Okay, it is not found inside the body, ये बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, it is found outside the body. ओके, सो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो इनकी बॉडी में क्या होता है? बोन्स के जैसा कुछ बना हुआ तो फ्रेमवर्क होता नहीं है, कुछ बोन्स का बना हुआ कोई स्केलेटन नहीं होता है। तो अब अगर इनके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं होगा तो इनकी बॉडी क्या हो जाएगी? ऐसे पूरी यू कैन से रोल होगी, बॉल की तरह हो जाएगी ना।
तो इसीलिए सो डैट इनकी बॉडी ऐसे बॉल की तरह ना हो, इनकी एक प्रॉपर शेप हो, इसीलिए इनके पास क्या होता है, इनकी जो बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, ओके, सबसे बॉडी की जो सबसे बाहर कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम और सिलिका पार्टिकल्स, ओके, सैंड पार्टिकल्स और कैल्शियम की बनी हुई होती है। बॉडी की आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, जो स्किन होती है इनकी, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, ओके। तो हम बोलते हैं कि इनमें एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है और एंडोस्केलेटन की प्लेस पे क्या प्रेजेंट होता है इनमें, एक्सोस्केलेटन। मीन्स इनकी बॉडी, सपोज ये इनकी बॉडी है तो ये बॉडी की पूरी आउटर जो लेयर है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये हार्ड मटेरियल जैसे कैल्शियम वगैरह की बनी होती है, ओके, टू प्रोवाइड देम प्रॉपर शेप, ओके। सो और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, आप vertebrate, we are also vertebrate, so you can take our example, you can take yourself example, human beings example. So हमारे में एंडोस्केलेटन स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ओके, cartilage which is by which our this ear is made up of, okay. So एंडोस्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन इज फाउंड, ओके, हमारे में प्रेजेंट होता है एंडोस्केलेटन, और इन वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है। इनमें मेनली क्या होता है, एक्सोस्केलेटन इनका हार्ड मटेरियल लाइक कैल्शियम एंड ऑल से बना होता है, और हमारे में एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, in as exoskeleton in us what is present, hairs, okay, nails, hooves, in some animals hooves are there, okay. So hair, nails, hooves, these are the parts of exoskeleton in vertebrates body, okay. Hair, nails, ये भी हार्ड होते हैं ना, hooves, okay. सो ये हार्ड स्ट्रक्चर्स, हेयर, नेल्स, हूव्स, ये सारे किसी हार्ड प्रोटीन के बने हुए लाइक केराटिन, ओके। सो इन दीज हार्ड प्रोटीन्स के बने हुए ये जो पार्ट्स होते हैं, यही एक्सोस्केलेटन का फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, ओके। और हमारी बॉडी में मेनली क्या होता है, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ एक पूरा, यू कैन से बोन्स का बना हुआ एक पूरा फ्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन, ओके। सो द एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन अस। सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, invertebrates and vertebrates. Invertebrate backbone absent, vertebrate backbone present. Invertebrate endoskeleton absent, exoskeleton is found, and vertebrate endoskeleton is present and in form of exoskeleton, जो कि बॉडी के बाहर की लेयर पे पाया जाता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सो इन फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन व्हाट इज देयर, हेयर, नेल्स, हूव्स, दीज पार्ट्स आर द फॉर्म ऑफ, आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, so all the animals are divided into two groups, okay. अब now invertebrates को और उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स को भी और वर्टिब्रेट्स को भी, ओके। सो इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी फाइलम्स, ओके। इनको बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है इनवर्टिब्रेट्स को, और वर्टिब्रेट्स में भी फाइलम्स हैं, फाइलम है, ओके। और फिर फाइलम्स को आगे और भी डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेट्स में, ओके। सो इनवर्टिब्रेट्स में भी, इनमें भी फाइलम्स को डिवाइड किया गया है, बट वी हैव टू स्टडी ओनली टिल फाइलम, ओके। सो व्हाट आर द फाइलम्स, किन किन फाइलम्स में डिवाइड किया गया है इनवर्टिब्रेट्स को स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स को फिर से डिवाइड किया गया है बहुत सारे फाइलम्स में। अब आप बोलेंगे ये फाइलम्स क्या हैं, तो ये भी एक ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये इनको हमने ग्रुप का नाम दे दिया, और ये भी, ये फाइलम्स भी क्या हैं, इन, अब ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ओके, ये सारे एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब इनको और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और इस एक ग्रुप को नाम दे दिया गया। फॉर एग्जांपल हम देते हैं ना ABC, तो इस एक ग्रुप को हमने नाम दे दिया फाइलम, तो ये सारे क्या हैं, फाइलम्स हैं, ओके। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग को हमने डिवाइड किया रूम्स में, इसी तरह इस पूरे इनवर्टिब्रेट्स को हमने डिवाइड कर दिया फाइलम्स में, ठीक है। अब रूम्स डिफरेंट तरह के होते हैं ना, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, ओके। सो इस तरह से फाइलम्स भी अलग अलग है। कौन कौन से फाइलम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में, पॉरीफेरा, ओके, सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्स, निमैथीहेल्मिन्स, ओके, ऑर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऑल दीज आर फाइलम्स ऑफ ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स को इन सारे फाइलम्स को डिवाइड किया गया है और वर्टिब्रेट्स को भी डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट
फाइलम हम स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 8 फाइलम्स हैं। फर्स्ट फाइलम हम ऑरिफेरा स्टार्ट करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ ग्रुप इनवर्टिब्रेट को हम डिवाइड करेंगे और इसका फर्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे, दैट इज ऑरिफेरा। थैंक यू।